السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈی جی پی آر نیوز اسٹوڈیوز۔ آج کی نیوز اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ رباب۔ پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی مزار بی بی پاک دامن آمد، توسیع منصوبے کو محرم الحرام سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر نشتر 2 ہسپتال پر تیزی سے کام جاری۔ وزیر اعلیٰ کی ہسپتال کی او پی ڈی اور لیبارٹری کو 30 مئی تک فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے آزادی صحافت کے عالمی دن کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا کہ درست اطلاعات تک رسائی خوشحال اور محفوظ جمہوری معاشرے کی بنیاد ہے۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈپٹی کونسل جنرل ریپبلک آف چائنا مسٹر کاؤکی نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں ثقافتی نمائش کا افتتاح کر دیا۔ نگران وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ سید اظفر علی ناصر نے سی بی ڈی پنجاب پروجیکٹ سائٹ کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر کو سی بی ڈی پنجاب کے ورکنگ ماڈل اور منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر کا ایوان صنعت و تجارت گوجرانوالہ کا دورہ۔ صنعت کاروں اور تاجروں سے ملاقاتیں، مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو مکمل کوریج اور ڈیٹا کا معیار یقینی بنانے کے لیے 15 مئی تک مکمل توجہ مردم شماری کے کام پر مرکوز کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کچا آپریشن میں شہید ہونے والے ایلیٹ اہلکار غلام قاسم کو شاندار خراج عقیدت۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت مردم شماری کے حوالے سے اجلاس، ڈی سیز کی شرکت۔ لاہور میں گورنمنٹ اسکیم کے عازمین کو مناسک حج کی تربیت دینے کے لیے انتظامات مکمل۔ حج تربیتی پروگرام جمعرات 4 مئی سے الحمرا ہال نمبر 1 اور 2 شاہراہ قائد اعظم میں شروع ہوں گے۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی مزار بی بی پاک دامن آمد، توسیعی منصوبے کو محرم الحرام سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ محسن نقوی نے مزار بی بی پاک دامن پر حاضری دی اور دعا مانگی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے مزار بی بی پاک دامن کے توسیعی منصوبے کا دورہ کیا اور منصوبے کو محرم الحرام سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ توسیعی منصوبے کی تکمیل سے زائرین کو بہترین سہولتیں میسر ہوں گی۔
सेक्रेटरी मवासलात व तामीरात ने मिज़ार बीबी पाकदामन के तोसी मंसूबे पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। आर्किटेक्ट नैयर अली दादा ने मिज़ार की अपग्रेडेशन और इस्लामी फ़न तामीरात के बारे में ब्रीफ किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर निश्तर 2 अस्पताल पर तेज़ी से काम जारी। वज़ीर आला की अस्पताल की ओपीडी और लेबॉर्ट्री को 30 मई तक फंक्शनल करने की हिदायत। 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल निश्तर 2 की तामीर पर 9 अरब 32 करोड़ रुपए लागत आई है। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं जनूबी पंजाब के मेगा हेल्थ प्रोजेक्ट निश्तर 2 की ज़ेर तामीर साइट पर। ये मंसूबा अपने महलो वकू के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। शहर के दाखिली खारजी रास्ते पर 58 एकड़ पर मुहित ये मंसूबे का फ़ेज़ 1 जो कि 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, तेज़ी से अपनी तकमील की तरफ गामज़न है। इस मंसूबे पर 9 अरब रुपए से ज़ायद ख़तीर रकम खर्च की जा रही है, जबकि 1 अरब 90 करोड़ रुपए का बायोमेडिकल इक्विपमेंट अब तक ख़रीदा जा चुका है। आइए आपको मज़ीद बताते हैं निश्तर 2 की तकमील और इसके प्रोजेक्ट के बारे में। वज़ीर आला पंजाब ने अपने हालिया दौरे के मौके पर इसके 4 डिपार्टमेंट्स जिसमें लेबॉर्ट्री, ओपीडी, इमरजेंसी और रेडियोलॉजी को 30 मई तक फंक्शन करने की डेडलाइन दी है। इमारत के अंदरूनी हिस्से में बिजली और दीगर इंस्टॉलेशन के काम का आगाज़ कर दिया गया है। लॉन्ड्री, रेडियोलॉजी, गैस पाइपलाइन सिस्टम का काम अवॉर्ड किया जा चुका है। जनरेटर, कूलिंग सिस्टम, यूपीएस मौसूल हो चुके हैं। हस्पताल इमारत, कैफेटेरिया, बैरूनी गेटों का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि बैरूनी दीवार, हस्पताल की सड़कें, नकासी आब का सिस्टम भी तकमील के मराहिल में है। निश्तर 2 का फ़ेज़ 1 500 बेड्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 120 इमरजेंसी ट्रॉमा बेड्स, 120 न्यूरो और ऑर्थ्रो बेड्स, 50 इंतहाई निगहदाश्त यानी ICU बेड्स, 100 बेड्स जो है वो गायनकोलॉजी और 110 बेड्स मेडिकल सर्जरी के लिए मुख्तस किए गए हैं। निश्तर 2 में 10 मॉड्यूलर थिएटर्स भी बनाए जा रहे हैं। निश्तर 2 का मंसूबा तेज़ी से अपनी तकमील की तरफ गामज़न है। निश्तर 2 के मंसूबे के मुकम्मल होने से जहां सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि इर्द गिर्द के सूबों से आए हुए मरीज़ों को भी फ़ायदा होगा, वहां निश्तर 1 पर जो मरीज़ों का इजाफी बोझ है उसको कम करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन राव तनवीर मुबीन के साथ इरम सलीमी, डिप्टी डायरेक्टर महकमा ताल्लुकात आमा, मुल्तान। अब बात करते हैं सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से अपने पैगाम में कहा कि दुरुस्त इत्तलात तक रसाई खुशहाल और महफूज जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से उनका कहना था कि आज का दिन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मीडिया की अहमियत को उजागर करता है। सहाफ़त के लिए कुर्बानियाँ देने वाले सहाफ़ियों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज़ादी सहाफ़त किसी भी मुआशरे के इज्तमाई शऊर की आईनादार है। हुकूमत शोबा सहाफ़त से वाबस्ता सहाफ़ियों और ज़राए इबलाग से वाबस्ता अफराद के तहफ़्फ़ुज़ की हामी है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मौशरती मसाइल के हल के लिए मीडिया का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। हुकूमत आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मीडिया की हामी है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और डिप्टी काउंसिल जनरल रिपब्लिक ऑफ चाइना मिस्टर काउकी ने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में सकाफती नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा, जमाल शाह, फरियाल गोहर, फैकल्टी मेंबरान और चाइना से सकाफत के शोबा से वाबस्ता कसीर तादाद में अफराद ने शिरकत की। नुमाइश में पाकिस्तान और चाइना की सकाफत को उजागर करने की कोशिश की गई। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि चीन पाकिस्तान का इंतहाई करीबी और बेहतरीन दोस्त मुल्क है। CPEC की तरह सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए भी चीन के साथ हेल्थ कॉरिडोर शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 30 से ज़ायद जबकि चीन में 100 से ज़ायद मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। पाकिस्तानी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ चीन की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशन चाहते हैं। निगरान वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट सैयद अजफर अली नासी ने CBD पंजाब प्रोजेक्ट साइट का दौरा किया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने CBD पंजाब के वर्किंग मॉडल और मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी।
बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कलमा चौक मंसूबा के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग CBD पंजाब बुलेवार्ड मंसूबे पर तामीराती काम की पेशरफ्त देखकर खुशी हुई है। बुलेवार्ड जैसे इक़दामात से जदीद शहरी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पुरुम्मीद हूँ CBD पंजाब इंतज़ामिया कलमा चौक रीमॉडलिंग मंसूबा निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुकर्रर करदा डेडलाइन पर मुकम्मल कर लेगा। सूबाई वज़ीर ने कहा कि 5 मई को अली ज़ेब अंडरपास अवाम के लिए खोला जाएगा और वज़ीर आला इसका इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर तामीराती काम वक्त पर मुकम्मल किया गया। 2 माह में CBD अंडरपास भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत SM तनवीर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरांवाला का दौरा, सनतकारों और ताजरों से मुलाकातें, मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। सूबाई वज़ीर ने कहा कि गुजरांवाला की इंडस्ट्री के पेश नज़र यहाँ स्पेशल इकनॉमिक जोन की अशद ज़रूरत है। हुकूमत इसका जायज़ा लेगी। गुजरांवाला में इंडस्ट्री मालिकान इंडस्ट्री चलाने में बहुत वसी तजर्बा के हामिल हैं। बिजनेस कम्युनिटी गुजरांवाला के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। शेख फैसल अयूब सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रॉपर्टी टैक्स, स्पेशल इकनॉमिक जोन, एक्सपो सेंटर और इंडस्ट्री के मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल से भी सूबाई वज़ीर को आगाह किया। उन्होंने कहा कि टैक्सों में बेइंतहा इजाफा, सनद दोस्त पॉलिसियों के फुकदान जैसे मसाइल ने पैदावारी अमल को रोक दिया है। इस मुश्किल तरीन कारोबारी हालात के बायस कसीर ज़र मुबादला कमाने वाली इंडस्ट्रियाँ बंद होना शुरू हो गई हैं। इसके नतीजे में रोज़गार के मौक़ा भी मुतासिर होना शुरू हो चुके हैं। इस पर सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत ने कहा कि मुल्की मईशत में गुजरांवाला की बिज़नेस कम्युनिटी का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। बिज़नेस कम्युनिटी गुजरांवाला के जिन मसाइल को उजागर किया गया है उनके तदारुक के लिए गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चीफ सेंसस कमिश्नर डॉक्टर नईमुल ज़फ़र की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा इजलास में पंजाब हुकूमत ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुकम्मल कवरेज और डेटा का मेयार यकीनी बनाने के लिए 15 मई तक मुकम्मल तवज्जो मरदमशुमारी के काम पर मरकूज़ करने की हिदायत जारी कर दी। इजलास में प्रोविंशियल सेंसस कमिश्नर अली बहादुर काजी और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की, जबकि तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इदारा शुमारियात ने कम गिनती वाले 20,000 ब्लॉक्स की निशानदही की है। इन ब्लॉक्स में गिनती का काम अगले 8 रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की कि अंडर रिपोर्टिंग करने वाले शुमार कुनिंदगान से बाज़ पुरस की जाए और मरदमशुमारी के काम पर पेशरफ से मुतालिक रिपोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर भिजवाई जाए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कच्चा ऑपरेशन में शहीद होने वाले एलीट एहलकार गुलाम कासिम को शानदार खिराज अकीदत। IG पंजाब ने कहा कि एलीट फोर्स के जांबाज गुलाम कासिम ने फ़र्ज़ की राह में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तानी कौम गुलाम कासिम शहीद की लाजवाल कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ऐसे ही सैकड़ों बहादुर शोहदा और गाजियों की अमीन फोर्स है। कच्चा ऑपरेशन में शरीक जवानों का मोराल और जज्बा बुलंद है। कच्चा के इलाके से तमाम मुजरमान के कला कमा तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत मरदमशुमारी के हवाले से इजलास, DCs की शिरकत। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि मरदमशुमारी कौमी फरीज़ा है, शहरी इसमें अपना कौमी किरदार अदा करें। कमिश्नर लाहौर ने शहरियों से दरख्वास्त की कि अगर मरदमशुमारी का नुमाइंदा आपके घर तक नहीं पहुंचा तो ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और 9727 पर मैसेज करें। मैसेज मौसूल होने के फौरी बाद शुमार कुनिंदगान आपके पास पहुंचेंगे। मरदमों खाना शुमारी को 100% मुकम्मल करने के लिए 15 मई तक तौसी की गई है। मिसिंग घरों और अफराद को डेटा में लाने के लिए तौसी के दौरान तमाम वसाइल बरोएकार लाएं। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि मरदमशुमारी की कामयाबी का तमाम तर इन्हसार मुकम्मल और दुरुस्त डेटा के हसूल पर है। दुरुस्त डेटा वसाइल की तकसीम मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी में अहम किरदार अदा करेगा। मरदमशुमारी से मुतालिक शिकायत के लिए कॉल सेंटर भी कायम किया गया है, जहां शहरी 0800575774 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
लाहौर में गवर्नमेंट स्कीम के आज़मीन को मुनासिक हज की तरबियत देने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल। हज तरबियती प्रोग्राम जुमेरात 4 मई से अलहमरा हॉल नंबर 1 और 2 शाहराह कायदे आज़म में शुरू होंगे। डायरेक्टर हज इकरार अहमद का कहना है कि हज तरबियती प्रोग्राम अलहमरा हॉल में 17 मई तक जारी रहेंगे। तरबियती प्रोग्रामों में आज़मीन को मनासिक हज, मदीना मुनव्वरा की हाज़री और इंतज़ामी अमूर की तरबियत दी जाएगी। तरबियती प्रोग्राम में शिरकत लाजमी है, तमाम आज़मीन हाज़री यकीनी बनाएं। डायरेक्टर हज ने कहा कि लाहौर शहर में गवर्नमेंट स्कीम के 10,000 से ज़ायद आज़मीन को मनासिक हज की तरबियत दी जाएगी। तरबियती प्रोग्रामों में शिरकत के लिए आज़मीन हज को मरहलावार SMS भिजवाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने दरख्वास्त की कि आज़मीन सिर्फ दी गई तारीख पर ही तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के लिए आएँ। जिन आज़मीन हज को अभी तक SMS मौसूल नहीं हुए वो वजारत मजहबी अमूर के वेब लिंक से तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की तारीख मालूम कर सकते हैं। ये थी अब तक की न्यूज़ अपडेट्स। DGPR न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। हुकूमत पंजाब से मुतालिक खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज और सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का YouTube चैनल।